جان چکے ہیں۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں وزیر اعظم کی۔ زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وفاقی وزراء، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت اعلیٰ سیاسی اور عسکری حکام شرکت کریں گے۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ IGs بھی شرکت کریں گے۔ جبکہ اجلاس میں SIFC کے تحت نیشنل ایکشن پلان کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری اور سہولیات سے متعلق امور پر بھی غور ہوگا۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب اور چینی سرمایہ کاروں سے ہونے والی ملاقاتوں سے متعلق بھی شرکاء کو بریف کیا جائے گا۔ چینی ورکرز کی سیکیورٹی سے متعلق بھی حکام بریفنگ دیں گے، جبکہ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان سے متعلق اہم فیصلوں کا بھی امکان ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ میں اجلاس ہوا۔ چینی اور دیگر غیر ملکی شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ملک میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ محسن نقوی کی سیکیورٹی پلان کے SOPs پر منوعاً عمل درآمد کی ہدایت۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم خاک میں ملانے کے لیے متعلقہ ادارے قریبی رابطہ رکھیں۔ سیکیورٹی پلان پر کسی قسم کی غفلت کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ملک کی معیشت اس وقت بکھری ہوئی ہے۔ سندھ کا صوبائی سرپلس 0 ہے۔ CPEC منصوبہ ملکی معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ انہوں نے کہا کہ کل بانی PTI کی رہائی کے لیے پرامن مظاہرے کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ PTI کے گرفتار رہنماؤں اور کارکنان کو رہا کیا جائے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس خبر سے متعلق کہ عمر ایوب کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے قومی اسمبلی میں کہ ملکی معیشت اس وقت بکھری ہوئی ہے۔ سندھ کا صوبائی سرپلس 0 ہے۔ CPEC منصوبہ ملکی معیشت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ کل بانی PTI کی رہائی کے لیے پرامن مظاہرے کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے۔ PTI کے گرفتار رہنماؤں اور کارکنان کو رہا کیا جائے۔ نیشنل کوہیژن اس وقت بکھری ہوئی ہے۔ آپ کی کریڈیبل ڈیفنس، وہ آپ کی سٹرونگ اکانومی منحصر ہوتی ہے۔ اکانومی بکھر گئی ہے۔ وی آر انڈر تھریٹ جناب اسپیکر۔ ابھی جناب اسپیکر سندھ کا پروونشل سرپلس 0 ہے، یہ بات آ رہی ہے۔ آپ کا یہ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پروونشل سرپلسز کو مسٹیٹ کر رہی ہیں۔ ہمارے 100 کے حساب سے لوگ کل پکڑے گئے ہیں پنجاب میں پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہوئے، فری عمران خان پروٹیسٹ کرتے ہوئے۔ ہم ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں۔ کل بھی ہم نے کنڈیم کیا۔ رات کو ہمارے لوگوں کے خلاف، ہمارے پارلیمنٹیرینز کے خلاف FIRs ہوئی ہیں۔ یہ وائلیشن ہے ہماری فری سپیچ کی۔ کانسٹیٹیوشن ہمیں گارنٹی کرتا ہے۔ آپ ہمارے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں جناب اسپیکر۔ ہماری نظریں آپ پہ ہیں۔ آپ مہربانی کر کے پنجاب پولیس کے ساتھ آپ نے یہ ٹاؤٹ جو IG پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان، اس کے خلاف ایکشن لے۔ ٹیکس دینے والے مزید نچوڑے جا رہے ہیں۔ تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دیتا ہے، ان پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ تنخواہوں پر ٹیکس لگانے سے پروفیشنلز ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM میں نورا کشتی چل رہی ہے۔ روکنے سے عوام کو تو کچھ نہیں ملتا، لیکن ان کو وزارتیں مل جاتی ہیں۔ سب کچھ ملک پر 70 سال سے مسلط ٹولے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ گندم خریداری نہ ہونے سے کپاس کی بوائی کا ٹارگٹ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ سخت معاشی فیصلوں کو بجٹ کا حصہ بنانا خوش آئند قرار دیا گیا۔ IMF حکام کی 28 جون کو پاکستان آمد کا امکان ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF نے سیاسی جماعتوں کے مثبت تعاون کی تعریف کی ہے۔ ٹیکس چھوٹ کے خاتمے کو محصولاتی کامیابی قرار دیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مالی سال 2024 اور 25 کے ترقیاتی بجٹ میں 21 محکموں کے لیے 1% ترقیاتی فنڈ بھی مختص نہیں کیا ہے۔ محکمہ اطلاعات اور ماحولیات کے لیے سب سے کم 0.02% کا ترقیاتی فنڈ مختص کیا گیا ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ، اوقاف اور ایکسائز سمیت درجن سے زائد محکموں کے لیے 1% ترقیاتی بھی نہیں رکھا گیا ہے۔ اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے نیوز سے پشاور کے بیورو چیف لحاظ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی لحاظ، کیا ڈیٹیلز ہیں اس سے متعلق آپ کے پاس؟ جی، خیبر پختونخوا حکومت نے اگلے مالی سال یعنی 2024-25 کے لیے مجموعی طور پر جو ان کی لوکل ADP ہے وہ 220 ارب روپے ہے، اور 220 ارب روپے میں سے 21 محکمے ایسے ہیں جس کی یہ 1% سے بھی کم ترقیاتی فنڈ مختص کیا گیا ہے۔
इन इदारों में महकमा इतलात है, माहौलियात है, इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन है, औकाफ है, खुराक है, सनत तजारत है, लेबर है, मादनियत है और इसके अलावा दीगर कई शुबे हैं। सबसे ज्यादा फंड रोड सेक्टर के लिए और मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया गया है, जो तकरीबन 18% बन रहा है। महकमा तालीम के लिए भी 10% से कम तरक्याती फंड को मुख्तस किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में बिजली घंटों घंटों गायब रहती है, बिजली आती नहीं और बिल कई गुना बढ़कर आ जाते हैं। लोड शेडिंग के सताए अवाम का मजीद क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आपको पता है, और लोड शेडिंग वैसे ही बढ़ाते जा रहे हैं, बिल आपका वही का वही आता है। यकीन करो इतनी परेशानी हुई, ईद के हालांकि 3 दिन लाइट नहीं जा रही, ईद के दूसरे दिन ही लेके जाना शुरू कर, बच्चे इतने परेशान हैं। अब लोड शेडिंग की तो बात ही नहीं करो आप, अभी यहाँ खड़े हुए 2 घंटा लाइट आती है, 3 घंटा जाती है। सबसे बड़ी मसला जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि बिजली ना होने की वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। बच्चे जो सारा दिन रोते रहते, एक और दूसरा फिर रात को 11 बजे गैस भी चली जाती है और सुबह 6 बजे आती है। ईद के दिन में जो है ना लोड शेडिंग नहीं होता था, अभी तो लोड शेडिंग इतना ज्यादा है, ईद के दिन भी लोड शेडिंग, आम दिनों में भी लोड शेडिंग, तकरीबन 8 सिटी में 8 से 10 घंटे जो है लोड शेडिंग चल रहा है। तकरीबन हर घंटा बाद बिजली चली जाती है, तो वैसे तो 12 घंटों तो बिल्कुल लोड शेडिंग होता है। बिजली बिल्कुल नहीं है, गर्मी है, लोग परेशानी, सब परेशान है यहाँ पे। बिल्कुल लोड शेडिंग इतना है कि हम लोग थक गए, हम लोग परेशान है, क्या करें। बिलावल भुट्टो भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ बोल पड़े, कहते हैं कहीं 16 तो कहीं 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अवाम में बिजली का बिल अदा करने की सख्त ख़त्म हो गई है। बिजली सप्लाई करने वाले अदारों पर अवाम का एतमाद ख़त्म हो रहा है, जबकि सियासतदानों को मिलकर अवाम के मसाइल हल करना होंगे। मगर अफसोस सियासतदान एक दूसरे से बात करने को भी तैयार नहीं हैं। बजट की तैयारी में मुशावरत ना करने का शिकवा शहबाज शरीफ की नीयत पर एतमाद का इजहार कर दिया। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं। इस वक्त अब्दुल कादिर पटेल कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। एक बात कहूंगा, और ये मैं बखुदा कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, मुझे मायूसी हुई। मैं चाहता था कि पहले जिस तरह कहा गया कि हम डाइसेक्ट कर रहे हैं चीजों को, तो वाकई डाइसेक्ट किया जाए, लेकिन वो डड्डू इनसे डाइसेक्ट नहीं हुआ, बल्कि डाइसेक्ट ने डड्डू कर दिया। मामला उल्टा हो गया, और किसी एक मसले पर जब तफसील में जाने लगे तो कहने लगे कि जी ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। फिर हम आ जाते हैं इस तरह कि हमारे लोग जेलों में हैं और हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। वो 3 घंटे की स्पीच मईशत में कोई एक मशवरा, कोई एक ऐसी तनकीद कि जो इस्लाह का रास्ता बना सके, अगर उस 3-4 घंटे में थी तो उसको दोहरा दिया जाए। मेरे पास एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। जिस तरह मेरे एक साथी ने कहा कि हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हमें अपनी ही बातें बहुतें करने को तो हम किसी का जवाब क्या दें, इसलिए अपनी बात करते हैं। जनाब, फाइनेंस बिल के जरिए मुअल्लमीन और मुहक्किकीन के टैक्स रिबेट के खात्मे, हॉस्पिटल्स और NPOs को टैक्स छूट के खात्मे के खिलाफ सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर को मुरासला अरसाल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़जाना को मुरासला अरसाल किया गया है। और मुरासले में मुअल्लमीन और मुहक्किकीन के टैक्स रिबेट की बहाली और फाइनेंस बिल 2024 से हॉस्पिटल्स और NPOs को छूट देने की दरख्वास्त की गई है, जबकि फाइनेंस बिल 2024 से हॉस्पिटल्स और NPOs को छूट देने की भी दरख्वास्त कर दी गई है। आपको अपडेट कर रखे हैं इस अहम खबर से मुतल्लिक़ कि फाइनेंस बिल के जरिए मुअल्लमीन और मुहक्किकीन के टैक्स रिबेट के खात्मे, हॉस्पिटल्स और NPOs को टैक्स छूट के खात्मे के खिलाफ सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर को मुरासला अरसाल किया गया है, जबकि एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़जाना को मुरासला अरसाल किया गया है, जबकि मुरासले में मुअल्लमीन और मुहक्किकीन के टैक्स रिबेट की बहाली, फाइनेंस बिल 2024 से हॉस्पिटल्स और NPOs को छूट देने की दरख्वास्त की गई है, जबकि फाइनेंस बिल 2024 से हॉस्पिटल्स और NPOs को छूट देने की भी
दरख्वास्त कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं कि फाइनेंस बिल के जरिए मौलमीन और महक्कीन के टैक्स रिबेट के खात्मे, हॉस्पिटल्स और NPOs को टैक्स छूट के खात्मे के खिलाफ सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत दीगर को मरासला इरसाल किया गया है, जबकि एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को मरासला इरसाल किया गया है। इस मरासले में मौलमीन और महक्कीन के टैक्स रिबेट की बहाली और फाइनेंस बिल 2024 से हॉस्पिटल्स और NPOs को छूट देने की दरख्वास्त की गई है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं एब्सब के तर्जुमान मियां इमरान मसूद। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये कहिएगा कि ये जो दरख्वास्त की गई है हुकूमत को टैक्स छूट की बहाली के लिए, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से इस पर पॉजिटिव फीडबैक आएगा? देखिए जी, ये बड़ी ज्यादती है और हुकूमत पाकिस्तान ने इस बजट में जो रिबेट्स मिलते थे रिसर्चर्स को और टीचर्स को, वो उन्होंने ख़त्म कर दी और इन पे टैक्स लेवी कर दिया। आप अंदाज़ा लगाइए कि सिंध में ख़ास तौर पर स्कूल्स और कॉलेजेस और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर 3% जो है वो इजाफी टैक्स लगा दिया, सैलरीज पे 45% टैक्स लगा दिया, और जितने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं NPOs उन पे भी टैक्स लगा दिया, और मेडिकल कॉलेजेस पे भी टैक्स लगा दिया। देखिए, आपके पाकिस्तान में इस वक्त जो क्राइसिस है हमारा फाइनेंशियल, उसमें ये इदारे ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स दी अपलिफ्ट ऑफ द इकोनॉमी। अब ऐसे इदारों को अगर आप टारगेट करके इनको आप डिस्करेज कर देंगे, ये 3% जो उन्होंने लगाया है इंस्टीट्यूशंस का, वो कौन देगा? वो तो स्टूडेंट ही देगा ना। अपनी फीस में वो इजाफी हो जाएगी, उसकी फीस बढ़ जाएगी टैक्स की। तो हमने अपने एप्सएप के इदारे से, एप्सएप जो कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटियों की तर्जमानी और उसकी नुमाइंदगी करता है, एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर का इदारा है, हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, सबको हमने ये खत लिखा है कि खुदा का वास्ता है इस मुल्क पे और इस खास तौर पे इन इदारों पे आप कोई मेहरबानी फरमाएं। लोग आगे बड़े परेशान हैं, महंगाई का इतना सख्त यलगार है, इतने ज्यादा टैक्सेस लगते हैं, बिजली पानी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है इस मुल्क में। तो जो इदारे चल रहे हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, टैक्सेस भी देते हैं जितना भी वो दे रहे हैं, तो इस पे जो है कोई नजरसानी की जाए। इस पे तमाम यूनिवर्सिटीज मुत्तफिक हैं, इस पे जो प्राइवेट सेक्टर की हैं, और सब ने मिलकर लिखा है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये फाइनेंस बिल में ये चीजें जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि आखिर हुकूमत को क्या नजर आया, हुकूमत ने आखिर इस के ऊपर जो है क्यों टैक्स लगाया, ये टैक्स रिबेट क्यों खत्म की गई, इससे मतलब आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इनके अहदाफ हैं, जो इनके टारगेट्स हैं कि इन्होंने टैक्स कलेक्शन करनी है, जो IMF से जो वादे किए हुए हैं, ये प्योरली एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है। ये प्योरली एक टेक्निकल, जो उनकी टीम बैठी हुई है कि हम इस मद में, इस सेक्टर में से इतना टैक्स उठा लेंगे, अपना जो इंडस्ट्री आटे वालों को इतना टैक्स लगा देंगे, शुगर को इतना टैक्स लगा देंगे। इन्होंने एक टारगेट पूरा करना है, बट विदाउट रियलाइजिंग कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, वो उस इंडस्ट्री को कितना नुकसान होगा, क्योंकि ये बहुत सी चीजें इन चीजों से अटैच्ड होती हैं। और आजकल पढ़ाई को मतलब हासिल करना, महंगाई है, इतना आसान नहीं है। तो हमने जो ये जितने टैक्सेस आप लगा रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो कौम पर और इन लोगों पर है पड़ेगा। ऐसे बच्चे जो स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, अगर आप टैक्सेस लगा देंगे इदारों को, तो लामहला जो है ये सस्टेनेबल बनाने के लिए फिर फीस तो लेनी पड़ती है बच्चों से, और वो बच्चों पे उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट बच्चों पे आएगा जी। अगर बिजली बढ़ती है तो उसका इफेक्ट अवाम पे आता है, गैस बढ़ती है उसका डायरेक्ट अवाम पे उसका फर्क पड़ता है, इसी तरह महंगाई का भी डायरेक्ट आता है। तो मेरा ख्याल है कि एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, और बहुत से बिल्स में जब जब ऐसी सजेशंस आती हैं वो इन गुड फेथ वो डिलीट भी हो जाती हैं, और हमने इन गुड फेथ बात की है। आप इस इंडस्ट्री को चलने दें, इन इदारों को चलने दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे अपना प्राइम मिनिस्टर नजरसानी करेंगे, प्रेसिडेंट भी करेंगे, और ये एक जेन्युइन किस्म का एक कॉज है, मुल्क की तरक्की का मामला। फाइनेंस बिल के जरिए मौलमीन और मुहक्किकीन के टैक्स रिबेट के खात्मे से मुतल्लिक मुरासला अरसाल कर दिया गया है। इससे मुतल्लिक हमें मौक़िफ़ दे रहे थे एप्सएप के तर्जुमान मियां इमरान मसूद हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया।